एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हैं इंदौर टेनिस क्लब में, जहां के बॉयज सिंगल्स फाइनल खेला जाना है। Very early on, he's stamping his authority. The number one seed, Aryan Prashant. all. 15 all, backhand down the line, कोशिश। There's so much more muscle behind those forehands from Aryan Prashant, but the last one clips the net. तो पहली सर्विस गेम होल्ड करने में कामयाब दक्ष प्रसाद। Just goes long with that backhand slice. Absolutely brilliant. Already the shot of the match so far, that backhand down the line winner. And he pulled it off to precision. बेहतरीन शॉट। तो आर्यन शाह भी अपना सर्विस होल्ड करने में कामयाब। क्रॉस कोर्ट गए इस बार। बेहतरीन विनर। लगातार 5-6 पॉइंट जीत लिए हैं आर्यन ने। पिछले पूरे गेम को लव पे होल्ड किया। एक और ड्रॉप। तो सर्विस ब्रेक हासिल करने में कामयाब आर्यन शाह। He's just motoring along here this morning, Aryan. सर्विस रिटर्न बाहर। 3-1 की लीड हो गई है अब आर्यन शाह के पास। अपनी फिटनेस का एक अच्छा नमूना पेश करते हुए 4-1 की बढ़त 2 ब्रेक्स की मदद से। He is very confident and he's aware of his abilities and his skills. He knows he dominates the circuit here in India. Just goes long, that return. Was reaching out to that. Should have taken that. What an opportunity it was for Daksh Prasad to nail that. He did well to take it on that half volley, but it sat there asking to be dispatched. He could have gone either way of Daksh, and he found the net. बहुत ज्यादा बाहर। तो दोनों ब्रेक पॉइंट बचाने में कामयाब आर्यन शाह। बैकहैंड उनका बाहर। तो एक सर्विस गेम ब्रेक बैक करने में कामयाब दक्ष प्रसाद। बैकहैंड डाउन द लाइन जा रहे थे, लेकिन लॉन्ग बाहर लैंड की ये बॉल आर्यन की। They're the best of friends, these two. So they know each other's game very well. He sends that forehand long. And so it's... Prasad. Shah leads 4-3. In fact, it was long. प्रसाद आसाम से होल्ड कर लिया और अब लीड उनके पास 5-3 की है। और अब दक्ष प्रसाद के लिए मुश्किल कि वो पहले सेट में बने रहने के लिए सर्विस करेंगे।
Game and first set, Shah. 6 तो games. इसके साथ ही पहला सेट आर्यन शाह ने जीत लिया है 2 सर्विस ब्रेक्स की मदद से 6-3 से। और पूरी तरह से एक गेम से ऐसा लगा कि वो कुछ आउट ऑफ सिंक हो गए थे, वरना पूरी तरह से इन कंट्रोल। तो पहला सेट जीते हुए आर्यन शाह 6-3 से इस गोल्ड मेडल मैच में बढ़त लेने में कामयाब। तो सेट नंबर 2 आर्यन शाह सर्विस करेंगे पहले। So good. What a winner. Lovely He game. was under pressure all through that point, Daksh Prasad. And to come from there and to execute a down the line forehand winner like that is quite sensational. How about that for a first point at the start of the second set? Love 30. लव 30। Game. It's the Prasad. best game he's had First all game, match second long. set. He's taken 4 points against serve in succession. $58, 30. 2 ब्रेक पॉइंट। Game, Shah. 1 game all, second set. New तो balls, please. तुरंत ही ब्रेक बैक करने में कामयाब आर्यन शाह। Love. Just too good. His game at the net is just phenomenal. Hardly makes a mistake with those volleys. And the fact that he sets it up so well, and he's so confident at the net as well. Can he continue doing that? An inch closer towards that gold medal, Aryan. What a platform this has been, the Khelo India Youth Games, for so many aspiring stars in so many different disciplines. Love It's been 15. wonderful bringing you all the coverage over the last 10 days here from Indore. As we'll flip over to Bhopal very shortly. It's almost like he can set up every point the way he wants it to. That's how much he's dictating terms here. Aryan Prashant. Except for some unforced errors like that. That's Just- gone very, very wide of the sideline. Okay, Prasad. 3 games all. तो Second set. 3 ऑल सेट नंबर 2 में दक्ष प्रसाद ने भी अपनी सर्विस होल्ड की। मौका गंवा रहे हैं, उनको भुना नहीं पा रहे, ये मुश्किल की बात। ब्रेक पॉइंट्स आए उनके हाथ में लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। Okay, Prasad. बेहतरीन पास और इसके साथ ही दक्ष प्रसाद ने Prasad leads बढ़त 4 games ले to ली है 3. Second set. और अब 4-3 से लीड कर रहे हैं नंबर 2 सीड दक्ष प्रसाद। बेहतरीन पास क्रॉस कोर्ट उनका। Just goes wide. It's these pass winners that has really, really come right for him in the last 2-3 games, but on this occasion, just marginally wide. Okay, Prasad. तो सर्विस होल्ड करने में कामयाब दक्ष प्रसाद। 5-3 की लीड होगी उनके पास। ब्रेक को कंसोलिडेट कर लिया है। Game, Shah. अच्छा फोरहैंड विनर लगाते हुए लव पे होल्ड Prasad किया leads और 5 games to अब 4. Second set. मध्य प्रदेश के दक्ष प्रसाद सर्विस करेंगे दूसरा सेट जीतने के लिए।
15-40. This is what we've seen a lot more of in the second set from Daksh Prasad. And he's a bit unhappy. He fancied himself. The opportunity was there for him to dispatch that short return from Daksh. But how about that for a cross-court winner? He's talking to himself and he's a bit unhappy. Anticlimactic there after that excellent forehand winner in that previous point. A double fault and he's conceded the game. And we're back on level terms here in the second set. It's 5 apiece. Game shot. तो रिटर्न बाहर और आर्यन शाह 6-5 की बढ़त लेने में कामयाब. तो 3 गोल्ड मेडल पॉइंट अब मिल गए हैं आर्यन प्रशांत शाह को. नंदिता शाह बहुत ध्यान से देख रही हैं इस गोल्ड मेडल मोमेंट को और ये बहुत ही सफाई से आर्यन शाह ने गोल्ड मेडल जीत लिया है 6-3, 7-5 से इस फाइनल को जीतकर. He's won 3, in fact 4 games in succession to now take the gold medal. The number 1 seed in India in the under 18 categories, the number 1 seed here at the Khelo India Youth Games. $102 kg का फाइनल है ये वेट लिफ्टिंग में. अक्षत शर्मा दिल्ली के लीड कर रहे हैं 123 किलो वजन उठाकर. हिमाचल प्रदेश के गोल्डी नंबर 2 पर हैं और पंजाब के प्रशांत कुमार इस समय नंबर 3 पर हैं. अक्षत शर्मा यहाँ पर 264. उन्होंने अपना जो क्लीन एंड जर्क का जो पिछला अटेम्प्ट लिया है वो है 146 kg. तो एक थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में है लेकिन मुकाबला जो है वो कड़ा है. अक्षत शर्मा पिछला अटेम्प्ट इन्होंने 141 का पूरा किया था. बढ़िया क्लीन लिया अक्षत ने. जो खिताबी दावेदार हैं वो अब आपको दिखाई दे रहे हैं इस मुकाबले के अंदर. लेफ्ट पैर पर बढ़िया सपोर्ट और बहुत शानदार लेफ्ट. मुस्कुराते हुए बाहर निकले 269. अक्षत शर्मा इस समय टॉप पर चल रहे हैं इस फहरिस्त में. हिमाचल प्रदेश के गोल्डी आए हैं इस समय. हिमाचल प्रदेश के गोल्डी अब तक उनका टोटल 265. क्लीन पोजीशन. एक बढ़िया ग्रिप के साथ इस समय नजर तो आ रहे हैं. चैलेंज है जर्क और फाइनली कामयाबी हासिल कर ली है. उनकी ग्रिप को देखकर ही ये लग रहा था कि वो ये कर पाएंगे. कि ये मुकाबला कम से कम 275 पर जाकर के तय होगा. पदकों की दावेदारी इनकी भी मजबूत होगी. पहला अटेम्प्ट तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत कम समय में इन्होंने शानदार तरीके से लिफ्ट किया था. ये दूसरा अटेम्प्ट 150 kg के लिए. तो यानी अभी अक्षत के पास मौका है. तो उससे पहले ये जो है सेकंड पोजीशन पे अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करते नजर आएंगे अगर 150 kg उठा लेते हैं. जी हाँ, पंजाब के प्रशांत ने जो है 150 kg लिफ्ट कर लिया है. यानी कि अब वो दूसरे पोजीशन पे दिखाई देने लगे हैं. अक्षत शर्मा 269 के साथ अभी हैं और ये अटेम्प्ट 151 के लिए. अब एक दूसरे को देख करके भी लिफ्टर अपने तुरंत बहुत जल्दबाजी की है.
थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही क्योंकि वक्त ले रहे हैं वो जर्क के लिए, और जब आप ज्यादा वक्त लेते हैं या कम वक्त लेते हैं, लेकिन यहां पर बहुत ही बढ़िया पूरे एतमाद के साथ इन्होंने उठाया। 274 किलो पर पहुंच गए। 269 टोटल के साथ प्रशांत कुमार कैली अपने इस आखिरी अटेम्प्ट के लिए 152, तो इससे पहले 150 के लिए गए थे और अब 152 के लिए जा रहे हैं। यहां पर अक्षत शर्मा अपने नाम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अटेम्प्ट नंबर 3 और आखिरी अटेम्प्ट 152 का। अच्छा क्लीन, और अब जर्क के लिए बाएं पैर का अच्छा सपोर्ट और कामयाबी के साथ ये लिफ्ट पूरा। ऐसा लगता है कि 1-2 किलो ज्यादा का ये लिफ्ट ले सकते थे। 271 किलो। इन बच्चों ने इसका भरपूर लुत्फ लिया, खूब आनंद उठाया, क्योंकि उन्हें पता है, ये देखिए बेहतरीन प्रदर्शन। अक्षत शर्मा ने गोल्ड जीता। अक्षत शर्मा 274 किलो के साथ गोल्ड, प्रशांत कुमार कैली 271 के साथ सिल्वर और गोल्डी 270 किलो के साथ नंबर 3 पर रहे, ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी हम आपको रेसलिंग में लेकर के चलते हैं जहां पर फाइनल्स खेले जाने हैं। हरियाणा राजस्थान दो पड़ोसी सब कुश्ती के इस बात करें दाव पेच के इस जंग में बहुत निर्णायक मुकाबला दादा। एकता कुमारी ब्लू सिंगलेट में पैसिविटी दे दी गई है ब्लू को, और अब उन्हें जल्द से जल्द करना पड़ेगा। वेस्ट के पास हाथ लगाया है, क्या पलट पाएंगी? बहुत ताकत चाहिए, 2 पॉइंट्स तो ले आई टेक डाउन के, और इस समय सोनिया वापसी की रास्ते में है। चलिए 2-2 की बराबरी पर है। पैसिविटी को तो उन्होंने नकार दिया। पैसिविटी की वॉच तो साथ-साथ खत्म हो गई। जैसे ही पैसिविटी उन्हें मिली वो आक्रामक हो गई और 2 पॉइंट लेकर के आई, लेकिन इस बीच सोनिया को भी 2 पॉइंट्स मिल गए। पैसिविटी का जोन में खड़ा किया गया था एकता को, लेकिन उसके बाद आक्रामकता दिखाई उन्होंने। इस बार जरूर इस समय बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती हुई इस समय हरियाणा की ये सोनिया का शानदार डिफेंस, झटका देने के बाद मैट पर ले आने के बावजूद उन्होंने पॉइंट्स नहीं दिए, तुरंत वापस लौटी वो। कांटे का मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। सोनिया इस समय, और यहां पर 2 पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट्स यहां पर ब्लू के खाते में और गए, लेकिन ये मौका है विन बाय फॉल का। एक जबरदस्त पकड़ बनाई और शानदार तरीके से गोल्ड मेडल जीता राजस्थान की एकता ने, विन बाय फॉल। क्या जबरदस्त अंदाज में एकता की ये जीत। हरियाणा जो वर्चस्व रखता है कुश्ती में, उस वर्चस्व को चुनौती देता हुआ एकता का ये जबरदस्त शुरुआत। 51 केजी कैटेगरी का गोल्ड मेडल मुकाबला। शुभचिंतक परिवार के लोग टकटकी लगाए। बिल्कुल अभिषेक लगातार ये उठता हुआ शोर आपको बता रहा है कि मध्य प्रदेश का कोई रेसलर इस समय बॉक्सिंग के मुकाबले में, माफ कीजिएगा, रेसलिंग के मुकाबले में बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई। 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल टेक डाउन के 2 पॉइंट्स मिले। क्या इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे? पकड़ बना रहे, कट रेंज के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन डिफेंस ठीक ठाक कर रहे हैं रोहित, मौका नहीं दे रहे उन्हें। अभी भी कट रेंज का मौका है अभिषेक के पास। अभिषेक ने अब न्यूट्रल पोजीशन में जाने के लिए आदेश हो चुका है। बहुत अच्छी शुरुआत की है अभिषेक सिंह यादव मध्य प्रदेश के लिए रेड सिंगलेट में। रोहित दिल्ली के खिलाफ चुनौती देते हुए अभिषेक अंडर 17 फेडरेशन कप में गोल्ड जीत चुके हैं, और यहां से देखना होगा स्टैंडिंग पोजीशन से बाहर लेकर गए अभिषेक को रोहित ने, और रोहित ने 2 पॉइंट अर्जित किए हैं। मध्य प्रदेश के लिए अभिषेक यादव रेड सिंगलेट में, रोहित है इस समय दिल्ली की तरफ से ब्लू सिंगलेट में। सिंगल लेग अटैक की कोशिश थी, बहुत अच्छा बचाव रोहित की। दिल्ली के पहलवान इस समय अपने पैरों को बहुत दूर रख रहे हैं पूर्वानुमान के साथ, और कोई भी दाव को साकार नहीं होने दे रहे। 30 सेकंड के अंदर उन्हें पॉइंट लाना पड़ेगा, और इस मुकाबले में सिर्फ 36 सेकंड बाकी हैं। अगर दिल्ली के इस पहलवान ने कोई पॉइंट नहीं लिया
तो फिर नुकसान उनका हो जाएगा। 3-2 की लीड है अभी दिल्ली के पास। बहुत मामूली लीड है, पैसिव करार दिए गए। वक्त निकल रहा है इस समय पैसिविटी का। अभिषेक पीछे है लेकिन दोनों ही लेग पे अटैक इस समय अभिषेक का और पैसिविटी का। क्या एक पॉइंट मिलेगा? बहुत खूबसूरती से टेक डाउन किया मध्य प्रदेश के लिए इस समय अभिषेक यादव ने। मध्य प्रदेश गोल्ड मेडल के नजदीक और खुशी की लहर इस समय दादा। बिल्कुल, लेकिन उस लहर के बीच चैलेंज भी आ गया। महासिंह यादव की बात करें, राव के चेहरे पे इस समय हल्की सी खुशी बता रही है कि मध्य प्रदेश ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये प्रदर्शन वाकई में प्रशंसनीय है। अभिषेक यादव मध्य प्रदेश के लिए कुश्ती के मैच से गोल्ड सुनिश्चित कर लिए हैं। संघर्षपूर्ण मुकाबले में तालियों की प्रतिध्वनि बता रही है कि कुश्ती के मैच से मध्य प्रदेश को गोल्ड मिला है। यहां से दादा बहुत शानदार पॉइंट। और ये जो 3-3 की बराबरी 4-3 पर समाप्त हुई, वो चैलेंज के फेल होने की वजह से हुई। दिल्ली भी महाराष्ट्र भी दोनों जगह कुश्ती बहुत जबरदस्त तरीके से पुष्पित पल्लवित होती रही है। स्वर्ण पदक दांव पे है। यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण है। क्या महाराष्ट्र अपने खाते में इजाफा करेगा मेडल का, या हरियाणा के खाते में इजाफा होगा? 65 केजी कैटेगरी का ये फ्री स्टाइल मुकाबला। अजय कापड़े जो कि ब्लू में है महाराष्ट्र से, और अजय कापड़े ने लेग अटैक करने की कोशिश की लेकिन उतना ही बढ़िया डिफेंस, और यहाँ वापस न्यूट्रल पोजीशन पर जाने के लिए कहा गया है। अजय कापड़े बाहर ले जाएंगे इस समय। स्टैंडिंग पोजीशन से अगर जोन से बाहर करते हैं तो 1 पॉइंट उनके खाते में मिलेंगे। और जी हाँ, 1 पॉइंट मिला है इस समय, और ये पॉइंट आकाश के नाम मिले हैं रेड सिंगलेट के इस समय पहलवान। बहुत जबरदस्त कुश्ती, गोल्ड मेडल दांव पे है। बड़ा मुकाबला 65 किलो भार वर्ग का इस समय। महाराष्ट्र वर्सेस यह मुकाबला दिल्ली। दोनों पहलवान अपनी पूरी आक्रामकता दिखाते हुए और 2 पॉइंट लेकर के गए हैं अजय कापड़े। लीड कर रहे हैं इस समय अजय। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस समय इस मुकाबले में आकाश रेड सिंगलेट में और अजय कापड़े इस समय ब्लू सिंगलेट में महाराष्ट्र की तरफ से। आकाश दिल्ली की तरफ से। दोनों के इस समय पहलवान आक्रामकता दिखा रहे हैं दूसरे राउंड में। दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच यह मुकाबला। देखना होगा दिल्ली के नाम क्या गोल्ड मेडल जाएगा या फिर महाराष्ट्र जो मेडल टैली में भी टॉप पे है, क्या उस फहरिस्त में एक और गोल्ड देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र के लिए अजय कापड़े, बहुत अच्छी कोशिश इस बार रेड सिंगलेट के पहलवान आकाश की, और स्टैंडिंग पोजीशन से बाहर किया है। 1 पॉइंट उनके हिस्से में मिलेंगे। प्रयास किया था यहाँ पर तेजी के साथ झपट्टा लगाने का, पैरों पर जाने का, और एक बार फिर ब्लू को जोन से बाहर निकालने की कोशिश, लेकिन उस कोशिश में खुद फंस रहे थे आकाश। अभी तक क्लियर, रेफरी ने कहा नहीं खेल चलने दीजिए। अब कैसे चलेगा? अब आकाश को 1 पॉइंट कमाना पड़ गया। ये दांव उन पर उल्टा पड़ गया और अब सिर्फ 50 सेकंड बाकी। पैरों पर बनाई पकड़, क्या इस पकड़ का फायदा ले सकेंगे? क्या इस दांव को अपने हक में कन्वर्ट कर पाएंगे? लेकिन सामने से जिस तरह का डिफेंस है, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इस दांव में होने वाला है। बिल्कुल, और अब न्यूट्रल पोजीशन पर जाने की दोनों को हिदायत दी गई। जब आप इस तरह का डिफेंस कर लें तो फिर सामने वाला पहलवान हिलडुल नहीं सकता। एक बार फिर पकड़ बनाई, लगातार लेग अटैक कर रहे हैं। इस बार मजबूत लेग अटैक। मौका है 2 पॉइंट लेने का, मुकाबले को जीतने का, गोल्ड मेडल को हासिल करने का, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस। बराबर आकाश इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके डिफेंस में पॉइंट ना जाए। 20 सेकंड का वक्त बाकी इस मुकाबले में। धीरे धीरे इस समय अजय कापड़े जीत की तरफ, क्योंकि 1 पॉइंट की लीड है और दाव भी उन्हीं का। सिंगल लेग अटैक। क्या इन आखिरी लम्हों में महाराष्ट्र के लिए एक और दुखद बात होगी इस समय, क्योंकि गोल्ड मेडल के दौर में आकाश पिछड़ रहे हैं और अजय कापड़े जीत की तरफ महाराष्ट्र के लिए, और महाराष्ट्र के खेमे में खुशी की लहर होगी। महाराष्ट्र के अजय कापड़े ने जीता। अपनी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन किया आकाश ने, इसमें कोई शक नहीं। शानदार तरीके से गोल्ड जीता अजय कापड़े ने। 65 केजी